वो लोग कहते हैं ना आपको नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है, अब बताता हूँ. So I remember that was like a big huge rock like this, okay, and we could not cross it, so we were waiting for the first light. ये जब हो then we'll cross and we'll get the camp. वहाँ पे camp militants का camp था उसके उस पर. We wanted to catch them in their camps. तो हम वहाँ पे उस पे सोए हुए थे. वो rock था, it was like huge, and I remember it was like arching your whole body while you sleep. With your gun on your chest, a cocked AK-47 on chest, with all the uniform and all. बस just कि थोड़ा वैसा सो के कि सुबह होने में टाइम है रॉक पे. And then it started raining, and you know what? Just कैप को ऐसा मुंह के ऊपर कर लिया, and पूरे एकदम जोर के बारिश हो रही है, आप उसमें सो रहे हैं. आप सोचिए कि किस लेवल पे वो इतनी प्यारी नींद किसको आ सकती है. तो वो था. And remember when we woke up, we woke with gunshots. Okay, when they attacked from the other side, they fired upon us on the other side. And then there was a whole gun battles, kills, death, blood, all these things, with after all these things. And then you realize कि life किस तरह से किस जंगल के कोने में आपको कहाँ से धीरे से शांत कर दे, आपको पता भी नहीं चलता. Good morning. We welcome you all to the podcast of the Crazy Tales, and here we have a very special guest with us. So we have Mr. Anand Mishra ji here. He's a top cop police officer, and he has served the nation for a couple of years, and a person who is being known for his lively attitude. And this year's in the hot elections, he was one of the hot candidates from Buxar. So we welcome you on the show, sir. Thank How you, are ma'am. you? I'm all well. Thank you so much, ma'am. Thank you for sir. the opportunity. Thank you, sir. We are very happy that you have been here. And Anandji, I wanted to know who is Anand Mishra as a person? अपने बचपन की कुछ यादें बताइए सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए. नहीं, as a person, I'm like I'm a very shy and introvert person. Basically, people may not they'll find it difficult to understand and accept. But at a personal level, I'm very shy and I'm a very introvert person. That's why I since childhood I always had these issues of maybe communication issues I had. मतलब recently also many people who have worked with me would have realized, especially my seniors, would realize that they think that I don't report and I don't tell, or I'm like onto myself, but it is not so. It's because of my shy nature. It is my being introvert, as well as I believe I'm a very sensitive person. Because whenever it comes to like saying something to someone, I always try to understand from their point of view कि how would they take it. Will I hurt them? Will they like it? Not like it? तो ये सब करने में क्या होता है कि the communication gets somewhere limited. तो this I'm still working upon this. और इसके चलते क्या है कि in my personal life also I've faced lot of things because of these things. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बचपन से एक डायरेक्शन में चलनी थी, but because of my this inability, so I have faced it personally also. I think it has affected me professionally also. तो ऐसे ही रहा है. बाकी अदरवाइज आई एम एवरेज पर्सन हु हैज़ बीन एक्सपोज टू द वर्स्ट ऑफ लाइफ्स, and that's why maybe somewhere I understand that life is like this moment. I don't believe in a long life. I do not believe in tomorrow. I do not believe day after tomorrow or anything like that. I believe in today. I believe in this moment. So that's why you find me lively, because I'm trying to understand and trying to live my life as if this is the last moment. So this has been my story, and a person who कुछ आपकी बचपन की यादें सर बताइए, कहाँ से शुरुआत की थी, कुछ अपने पढ़ाई के बारे में. और राइट, मेरी देखिए पढ़ाई ना, माय फादर वाज एन इंजीनियर. ही वर्कड इन हिंदुस्तान मोटर्स, which is near Calcutta. There is a place called Hind Motor, Uttarpada Hind Motor. So he was employed there, and for that sake I did my basic education from there only. तो my school था Hind Motor Education Center, अभी भी है. तो वहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई किया था, और उसके बाद एक ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस. तो दैट वाज, आई हैड अ वेरी आई विल से हैपनिंग my childhood, in the sense I was into lot of things. I tried to live life full size. So even during school, as I told you, that I was a shy person, an introvert who would always try to hide behind somebody's head in the class. How did you choose this? That's why perhaps, because while I was fighting with myself and lot of things, school में होता है ना, बच्चे होते हैं आप, तो बहुत चीज़ें होती है लाइफ में. So gradually around class 8th, I realized that I have to be visible. I have to come out of this shell. But nobody knows me. My classmates don't know me. So it was like that, And so
I started working upon myself. And उसके पहले क्या था कि since childhood I had enrolled myself into karate. So I was into martial arts. So by that time I was already a black belt, you know. So that was another part of my life, and I was continuously trying to be express myself physically, you know, in the karate dojo, what we called fields and all, rather than emotionally or in words or relationships. तो मैं वैसा था. But 8th onwards, you know, there are certain things that happened, and then I started trying to be visible. I started trying to work upon me कि why यार मैं हो के भी गायब हूँ. You know, मेरे क्लासमेट्स ही मुझे नहीं पहचानते हैं. स्कूल तो दूर की बात है. इतना बड़ा भी स्कूल नहीं था कि जो ना पहचाने. So gradually, and then believe me, it was within a year that I was the most visible guy. And it was a complete, suddenly someone That can appeared. be an inspiration to a lot of students here also, Yeah. because the introvert never think of doing That's what I am a person who, after that only, I believe my personality or character started shaping up. And I was the school captain within a year. Such a, from no one to the school captain. Okay. So I started participating in sports, started participating, because earlier क्या होता था कि I did not take responsibility. You know, I would always be at the back seat. So I'll just be a follower types. So that was a 1-year transition which took place. Yes, a few months transition in fact, you know. तो वो एक major time था कि where I had completely changed over as a person. And उसके बाद से it has always been a story of like, you know, trying to be, क्या बताएं, एक identity crisis कह लीजिए जो रहा था बचपन से कहीं ना कहीं. तो उसके लिए भी वर्कआउट करता. फिर ग्रेजुअली बाय दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड मिक्सिंग विद पीपल, नोइंग पीपल, देन आई अंडरस्टूड दैट पीपल आर, you know, a lot of people are like, you know, limited in their own shells. So we needed to help them out. So by that attitude and came up, and then I realized gradually that, you know, the best profession which perhaps I'll be suited for is a cop, is being a police officer. So I always had this knack of you know, standing for the weak. I always had the knack of you know, speaking for someone who's not speaking, because I could find myself that ये मेरे जैसा ये भी घुट रहा होगा. तो जो भी कमज़ोर दिखता था, weak दिखता था, I used to, and then that cop mindset gradually built upon me. And there was no second career thought that मैं और क्या बनूंगा, मुझे पुलिस ही बनना था. बाद में then by that time I realized that only IPS perhaps can be my option, because again उसमें वो बात थी कि जो करेंगे टॉप का करेंगे, you know, तो I'll not settle And for it was also in a very young age of 22 yeah, that's years. what. Yeah, just out of no, it was not, IPS did not occur at 22. It was my state civil service which came up then. You know, just after my graduation, I appeared for the state civil services in West Bengal and I qualified there. वहाँ 5 साल काम किया, उसके बाद मैंने IPS ज्वाइन किया. तो during that time also I got into the civil part of this, you know, civil services, and I wanted the police service there also. And God is great. कहीं ना कहीं शायद वो मुझे अगर डीएसपी बना देते तब तो मैं शायद आईपीएस का एग्जाम ही नहीं देता, बिकॉज आई वुड हैव बीन हैप्पी विद द यूनिफॉर्म. As a cop, like मैंने देखा आपके बारे में, you have been a big social influencer. Also, people love you a lot. क्योंकि मैं जहाँ से हूँ मैंने वहाँ पे भी देखा है कि they are a big fan of you, sir. So like somebody, क्योंकि normally क्या होता है ना, पुलिस के लिए there is a lot of fear in the civilians. But वो fear आपके साथ शायद there is a lot of love and respect for you. There were people who were crying for you when you left from Dhubri. So how was the experience, sir? इसमें ना ऐसा होता है, इट इज़ लाइक दिस. सी व्हेन आई एम इनटू अ पोजीशन, आई एम अ कॉप, यू नो, आई एम अ डिस्ट्रिक्ट एसपी. सो ऑलवेज आई यूज्ड टू टेक इट लाइक दैट कि व्हाट एंड हाउ वुड आई वांट टू बी ट्रीटेड इफ आई अप्रोच अ एसपी, or how I would want my father to get treated if he approaches a SP, or my mother, or my sister, or my friends, or anyone. So I always try to behave in the same manner, the treatment which I expect from an officer. So that kept me grounded. You know, that made me a bit, it helped me add that personal touch into professional transactions. So that's why people, you know, they got to see a different face of a cop. Yes. Because, and secondly, I always try to remain conscious of the fact that I'm there to serve people. I'm not there as a shashak. I'm not there as a ruler. I'm there as a sevak. I'm there as a public servant. So this concept was clear crystal in my head, that I'm there for the people. I'm not there for myself. And secondly, that one thing which I always thought that which is important for anyone is to understand that if you have power,
then be good to someone, do good to someone, bring a positive influence in somebody's life. Creating negativity is very easy. Yes. So that's why I believe people got to see a phase where a cop is bad with the bad guys and Yes. good or very good with the good guys. So that balance we could keep. And that's why perhaps what you are saying is, Yeah, that because we had like there were people who were really like they were very feeling so low that you have been leaving them. So that's like a very remarkable thing which we see, Right. very rare thing to see. And sir, the shift from you being a cop and then going to the politics, how was the transition? The Like- next transition we can see. I would say that again the same thing, you see the seeds are, sown in your childhood. Yes. Okay. So as I told you, I always feel for the weak. I always feel for those who are not able to fight for themselves. So as a cop, I was doing it, but in a limited scope. The mandate was limited. I could not go beyond a certain sphere, point, a certain yes. point. But my concerns were growing day by day, but my powers were not. So just to create some balance and to understand that, and also one thing that I wanted to serve in Bihar. For that I had also applied for an inter-cadre deputation, which was unfortunately, I'll say, not accepted. And I believe that that was a point where I decided कि no man, ये तो दादागिरी है, ये तो नहीं चलेगा. And the rules में है, when the rules are there, when I as a right, I can go on deputation. How can you stop me? So then I decided कि बहुत हो गया है. I'm not here as a servant of anyone. I'm servant to a cause. I'm not servant to a person. Yeah. Okay. So I decided that time up. Let's switch over. You cannot stop me, na. It's a free life, and you You're a cannot man stop of me. irony, I believe, because like when we like probably change and shift things only Yeah. because of our own things, then I think a lot of things we lose in life. But there are Right. rare people who definitely work for their dreams. Yeah, that's And जो यूपी का जो पॉलिटिक्स है या यूपी बिहार का जो पॉलिटिक्स है, हम जनरली देखते हैं कि सर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स Yeah. बहुत ज़्यादा है ना. आप जो चेंज लाना चाहते हैं और यू बीइंग द फर्स्ट टाइम यू कंटेस्टेड Right, ऑल्सो, right. क्या फीलिंग्स रहा सर, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे? नहीं, आई अंडरस्टैंड कि द सोसाइटी ठीक है, बट पॉलिटिकली बिहार हमारे में थोड़ा सा सोसाइटी में पॉलिटिकल मैच्योरिटी बातचीत में तो है, डिसीजन टेकिंग में नहीं है. पीपल आर स्टिल, इट्स वेरी इजी टू पोलराइज सोसाइटी, आवर सोसाइटी. इट्स ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट, on the lines of fear, on the lines of something which is irrelevant to the people on ground, but creating a psychosis among the people. मेरे साथ भी वही हुआ. They created a fear कि इनको वोट दोगे तो वो जीत जाएगा. तो वो दूसरा हो गया कि ब्राह्मण सीट है, ब्राह्मण ये मीन द कास्ट लाइंस पे उसको लेके गए. देन दे और जो फिल्दी पॉलिटिक्स तो हर जगह फिल्दी है. सो द पॉलिटिशियंस जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं जिनका एंड इन लाइफ ही पॉलिटिक्स है. फॉर मी पॉलिटिक्स इज एन means to achieve a social end, but for most of the politicians politics is an end in itself. उसको बस नेता बनना, वही उसका end in life है. वो नेता बन के क्यों बनना है वो सोचता भी नहीं उसके बारे में. तो ये सब जब combination आता है तो then people like me will have to still wait to take up charge or take up leadership, where your vision is clear, your fundamentals are very very sharp and clear, कि no compromise with your ethics and you want to do it most honestly and sincerely possible. तो हमारा सोसाइटी इसके लिए रेडी नहीं है. The people many of the people they don't understand that yes there can be truthful people. सच्चे आदमी हैं, ये यकीन ही नहीं करते हैं. And there is a fear in the youth also for joining the politics. What would be your message to them also? Yeah, मैं कहूँगा देखिए कि जो fear नहीं सब में है, the fear of unknown. Okay, the fear of unknown. तो यूथ के लिए क्या है कि लाइक जॉब में क्या होता है कि इट्स अ सिक्योरिटी, कि आप जॉब में आते हैं, आपको पता है कि ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाला है, आप कैसे होंगे, महीने के एंड में आपको सैलरी मिल जाएगा. और पॉलिटिक्स में क्या है कि पैसे का तो सीन ही नहीं है. अगर आप ऑनेस्ट हैं तो पॉलिटिक्स से पैसे नहीं कमा सकते. आप काम करना, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा. पॉलिटिक्स इज प्योरली अ सोशल सर्विस थ्रू पॉलिटिकल मीन्स. तो लोगों को लगता है यार ये कैसे करेंगे, इतना कॉम्पिटिशन है, प्लस इसमें कोई एथिक्स नहीं मांगते लोग. देयर इज नो एथिक्स इन पॉलिटिक्स एज ऑफ नाउ. मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कुछ भी करेंगे कुर्सी के लिए या कुछ भी करेंगे पावर के लिए. तो ऐसे में क्या होता है कि पीपल इन जनरल आर सोबर. पीपल इन जनरल मैं मानता हूँ कि लोग अंदर से सब अच्छे होते, देव तुल्य है, देवी तुल्य है. तो लोगों में जो इंट्रिंसिक जो वैल्यूज होते हैं ना किसी के, वो होता है पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी. तो पॉलिटिक्स में ये सब उल्टा पड़ता है. तो वो डर लगता है कि यार
क्यों ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पीस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो पीपल हु जॉइन हैव समवेयर लेफ्ट ऑल दीज थिंग्स एंड दे आर रेडी टू फाइट इट आउट एंड यू नो दे हैव सर्टेन फैकल्टीज इन माइंड कि जिसके चलते वो आ जाते हैं. बट जनरल लोगों के लिए ये काफ़ी यू नो इट्स हाँ इट्स अ टफ थिंग एंड आई बिलीव because we have been seeing lot of changes in the political scenario also. Yeah. और हमें ऐसा लगता है कि सर दे शुड बी सर्टेन चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ पीपल ऑल्सो Right. एंड ऑल्सो लाइक हाउ डू यू थिंक दैट चेंज वुड कम अप लाइक आप जैसे लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं Yeah. एंड देर आर ऑल लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो हु ट्रूली वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड दे Right. डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग विथ फेयर मीन्स सो इज इट पॉसिबल Yeah, it is possible. It is possible for it may be difficult, but it's possible. For me, like you know, अभी ठीक है, I could not. But इसका मतलब नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ. I am coming. Definitely, yes. I'm coming in a big way. Yes. Okay, तो हम आ रहे हैं और आने के बाद yes, I will ensure कि such people are encouraged because I come with this mindset. So Yes. जो जैसा होता है वो वैसे को promote करता है. You Yes, understand? yes, Okay. yes. तो people कहते हैं birds of feathers flock together. Yes, So if I am having a sincere mindset, I am having a mindset of public service orientation. I will always promote and protect and encourage people who come with a positive bent of mind, who come for sakaratmak rajniti, Yes. you know, positive politics. I'll always promote them. I'll always promote who takes politics as a means towards achieving a social end. You know, I'll always promote them. So people like me, whoever, wherever they are, you know, they should now understand it is not about themselves. It's not about me becoming an MP. It's not me becoming a leader. It is about me creating space for more people to come up, form a strong team, a positive team, and let the country and our people, you know, escalate in their mindset, escalate in their life conditions. तो इसके लिए जो आपने कहा कि ऐसे लोगों के लिए आना मुश्किल है इनिशियली मुश्किल है. बट मैंने ये भी देखा मुझ जैसे लड़के यार मुझसे अच्छे बेहतर लोग हैं सब, लेकिन वो जब पोस्ट में पहुंचते हैं ना तो उनके अंदर भी वो फियर आ जाता है लूजिंग देयर पोस्ट, लूजिंग देयर प्लेस. सो वैसे हमको लोग चाहिए जो रेडी हो सैक्रिफाइस करने के लिए कि एट अ ब्लिंक ऑफ एन आई आई एम रेडी टू लीव इट, you know, but not at the cost of my ethos, not at the cost of the purpose for which I came. So I believe that I have strong bent of mind on that front. तो मैं कभी भी चेयर के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा. And like if you talk about your family, like who is your more support system who supported you all through? नहीं सच बताऊँ तो कोई नहीं ऐसा. हाँ सच बता रहा हूँ. मतलब I should not like fake around and tell people कि हाँ इसने सपोर्ट किया. तो मैं सोल वुल्फ हूँ ना, लोन वुल्फ हूँ. Okay, कि who is fighting within, who is fighting outside. Okay, for a purpose which maybe I may appear to be mean in this front, but ये fact है because you see, you have to understand a person from the person's experiences. Yes, You cannot judge me with your experiences. Yes, You know, you have I to had be a your own different life. experience. हाँ, So if you want to judge me, know my experiences, know my history, know my story, then you can judge me. Then you will have a correct understanding of me. So me as a person have faced a lot of gun battles, a lot of situations where I could have died instantly. Okay. So I have survived 1, 2, 3 hundreds of times I've survived. मैं जिंदा हूँ. मेरा ये जो जीवन है ये एक्स्ट्रा में जी रहा हूँ मैं. I would have been dead long before, you know. Okay. So yeah, at least मैं बताऊँ तो कम से कम कई जाने कितने सालों पहले मुझे मर जाना चाहिए था because of my experiences in life. Still I am alive. Definitely. So if I am alive, I'm here for a purpose. And I'm not here to live my life. I'm here to maybe help out people realize and understand what is a better life for them. तो मैं उस लेवल से जी रहा हूँ. I have stopped asking for myself. I have stopped, you know, craving for myself. So just not wearing the gerua, but I live with a sannyasi mindset. You know, the voices, and people won't understand that. Yes. Generally, people won't understand that. But so, like listening to you, maybe in couple of years, people will definitely. yeah, gradually look maybe forward. नहीं. It is not about listening. क्योंकि बात करने में हमारा देश बहुत तेज है ना. बात बहुत लोग करते हैं. हाँ, तो वो सोचेंगे ये भी बात करता है. तो ये प्रूव होगा कब होगा? When I am on ground, when I am working in a couple of years, or maybe more years, Yes. where I need to establish what I am speaking. You know, because it will be established only by my works. Yes, And I'm ready to do that. तो अभी तो इलेक्शन अगर हो जाता तो मेरे पास रेडीमेड प्लेटफॉर्म होता काम करके दिखाने का, एंड मेरा जो माइंडसेट है उसको ज़मीन पे. Now that is not there. तो I'll still work, maybe at a lesser scale. Yeah. You know, my scale will be lowered, but the ability to work or my spirit for working is not compromised. That is still there. Yes. Okay, yes, my scope is limited by my availability of resources, which is not in my hands now. So
but I will keep working, and people will realize, the society will realize, I'm sure that I will get a space, because the nature is there which Yes, keeps balancing keeps- things. definitely. So the nature would balance me and get me into a place from where I can be functional for the whole natural setup. डेफिनेट सर, जैसे हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया, आप जैसे जो आपकी पॉलिटिकल शिफ्ट भी हुई थी सर, जितना हमने न्यूज़ एंड उसमें हमने देखा कि यू हैव ऑल्सो बिन लाइक पोजिशन दैट यू वुड बी गिवन सर्टेन चांसेस टू डू पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, और वो जैसे कि हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर है, यू हैव बिन प्रॉमिस फॉर सर्टेन थिंग्स, एंड जिस वजह से कि हमें लगता है कि आपको एक बहुत बड़ा एक मौका मिल सकता था, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए। जी, जब मेरे ये जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने समक्ष पेश किया था, तो उसके पहले भी मैंने अपनी बात दिल्ली तक भी पहुंचाई थी। तो बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्वयंसेवक बैकग्राउंड, तो मैं एक संघ के बैकग्राउंड से आता हूँ। बचपन मेरा काफ़ी शाखा के इर्द गिर्द ही बीता है, तो इर्द गिर्द ही बीता है। तो आई हैव अ नेचुरल बेंट ऑफ माइंड फॉर बीजेपी। तो आई वांटेड टू वर्क, एंड मैं क्या हो, आई एम अ पर्सन हु इज़ नॉट रियली फॉर चेयर एंड कुर्सी। मैं तब भी उनको कहा था कि अगर मुझे बक्सर से टिकट मिलता है लोकसभा का, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मुझे एक डायरेक्ट संसद में अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलेगा और काम भी बड़े लेवल पे मैं कर पाऊंगा। नहीं भी तो मैं संगठन के लिए भी काम करने को तैयार हूँ। मुझे जो भाजपा का जो पार्टी है, संगठन है, उसके लिए काम करने दिया जाए बिहार में, लेकिन और मेरा था कि मुझे बिहार में थोड़ा काम करना है, मुझे बिहार में अपनी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बचपन से आप कट जाते हैं ना जगह से, मिट्टी से, कि बिकॉज ऑफ पिताजी की नौकरी एंड ऑल, हाँ, पढ़ाई लिखाई, मेरा खुद का जॉब, बाहर रहना पड़ा, तो मिट्टी खींचती है आपको। तो आई वॉन्टेड टू बी देयर। तो ये बात हुई थी, तो उसके बाद उनकी ओर से आया था कि भाई यस, देयर इज अ ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड, यू आर वेलकम, एंड आप चलिए आइए। बट बाद में सब विड्रॉ कर गए, सारे पीछे हट गए। तो क्योंकि आप जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो बहुत सारी चेंजेस एंड रिफॉर्म्स भी होता है। दैट्स व्हाट। तो आई बिलीव कि कुछ, देखिए, मैं ना इसका ब्लेम तो अब किसको दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बिहार के ही स्टेट में ही कुछ लोग ऐसे शायद थे, जो कुछ लोग रहे होंगे, सबको नहीं कह रहा, कुछ लोग रहे होंगे जिनका पर्सनल इंटरेस्ट इससे हर्ट होता अगर मुझे स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। तो इसीलिए लोगों ने कोशिश किया कि इसको रोका जाए। सर, क्या आपकी ऑनेस्टी आपको लगता है ये भी यस, दिस इज अ मेजर रीजन, क्योंकि लोगों को पता है कि ये कॉम्प्रोमाइज वाला लड़का नहीं है, ये मैनेज वाला टाइप का नहीं करेगा, ये पैसे नहीं कमा के देगा हमको, ये हमारे लिए कमीशन के पैसे नहीं उठाएगा। तो अरे भाई, आपको संगठन के लिए तो एक क्लीन चेहरा चाहिए, ये तो समझना चाहिए इनको। एक आपको संगठन भी तो चलाना है या खाली पैसे कमाने हैं? आप पैसे कमाओ यार, 99 लोग से पैसे कमाओ, एक आदमी तो छोड़ दो जो कि संगठन के लिए काम करे ऑनेस्टी से। नहीं, क्या आपने टॉप नॉच लीडर्स से अप्रोच किया था? जी बिल्कुल, मैं जो टॉप नॉच हो सकते था, माइनस नंबर 1 2, हाँ, तो उनसे मेरा पर्सनल कभी कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ, तो इसका नहीं बोलूँगा, बट इनडायरेक्टली मुझे वाइब्स मिले, मैसेजेस मिले, वैसा चीज़ था, तो वो रहा। तो अनफॉर्चुनेट है, पता नहीं किसके लिए अनफॉर्चुनेट है, बट अनफॉर्चुनेट है कि पूरे प्रकल्प में कि मैं अपने सर्विसेज ऑनेस्टली लेके आया था देश के नाम पे। मैं सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजन है, इतने बड़े विजन है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मजबूत सिपाही भी चाहिए ज़मीन पे। तो मुझे लगा कि मैं एक मजबूत सिपाही बन सकता हूँ। सर्विस को भी आप बिल्कुल, मैं छोड़ के आया इतना बड़ा सर्विस, तो विथ एक्सपेक्टेशंस की इसकी इज्जत होगी, लेकिन जब टिकट भी नहीं दिया, मुझसे कोई कम्युनिकेट भी नहीं किया, कोई बात ही नहीं करता है, तो मुझे लगा यार ऐसा कैसा है। और जब मतलब 1-1.5 महीने तक मुझसे किसी ने बात नहीं की, मैं जब अनाउंस भी किया कि ठीक है मैं चुनाव, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। आपने सीएम साहब से फिर बात करने की कोशिश किया मैंने, बिल्कुल कोशिश किया, इनडायरेक्टली बात हुआ, डायरेक्ट तो उनसे बात उसके बाद नहीं हुआ। तो एक काफ़ी करीबी हमारे कॉमन है बीच में, तो जिनके थ्रू बातचीत होती रही थी, पॉजिटिव वाइब्स मिलते रहे थे तब भी, बट सबने ये सोचा था कि यार ये क्या ही करेगा, पीपल अंडरएस्टिमेट यू द वे इट हैपेंस। आई थिंक द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैज आल्सो कैंपेन्ड इन बक्सर, दैट वाज आल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, मैं कहूँगा दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब मैंने उनको कहा था कि मुझे कम से कम पार्टी ज्वाइन कराने में मदद किया जाए, तो मुझसे ये कहा गया था कि बिहार का इंटरनल मैटर है, इसमें उनका इंटरफियर करना ठीक नहीं दिखता। तो फिर सर आप असम से भी तो लड़ सकते थे। नहीं, देखिए मेरा बताओ ना, मैं इलेक्शन लड़ना मेरा मकसद ही नहीं था, पॉलिटिक्स मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद था अपने क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए कुछ काम करना, सोशल काम करना। तो वो होता तो फिर तो मैं ग्रीनर पेशर्स मुझे बहुत जगह मिल जाते हैं। बंगाल में भी अवेलेबल था मेरे लिए, असम में भी अवेलेबल था, मैं कहीं पे भी कर सकता। मुझे पॉलिटिक्स करने नहीं आया मैं ये लोग समझ नहीं रहे मेरी बात। ये मेन हाँ, कि मैं पॉलिटिक्स के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आया हूँ काम करने के लिए। पॉलिटिक्स एक माध्यम है, इट्स जस्ट अ मीन टुवर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो ये था। तो अल्टीमेटली अभी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं तो अभी भी काम करूंगा ही, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, मैं ग्राउंड पे काम करूंगा, एंड आई नो दैट आई विल बी इफेक्टिव। आई हैव सीन माय वर्थ।
मैंने अपना पेनिट्रेशन भी देख लिया है कि मैं किस लेवल तक ग्राउंड पे लोगों पे पहुंच सकता हूँ। और सर बक्सर के जो लोकल लोग हैं उनका क्या व्यू है? बहुत ही पॉजिटिव है। मैं बताऊं, लास्ट मिनट पॉलिटिकिंग में हमारा वोट्स थोड़ा कम हुआ और जो भी कारण से हम इलेक्शन को नहीं हम लोग निकाल पाए, लेकिन यस ये ज़रूर है कि एटलीस्ट 50,000 डेडिकेटेड लोग हैं मेरे साथ वहाँ पे। मिनिमम 50,000 इज़ अ ह्यूज नंबर। और वो ऐसे लोग हैं जिनको हर प्रपंच कर लिया गया, हर कोशिश कर लिया गया तोड़ने का, वो नहीं टूटे, वो लास्ट तक मुझ साथ खड़े रहे। तो इसलिए आई एम हैप्पी कि विद दैट बिग ह्यूज नंबर आई विल बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन बक्सर। क्योंकि जो वहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो कि हार भी गए लेकिन फिर भी वो निगेटिविटी फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आई एम श्योर विल बी एबल टू चेक देम। हाँ, क्योंकि आप अधर्म लेके धर्म को तो नहीं दबा पाएंगे। तो मैं मानता हूँ कि मैं धर्म के साथ हूँ। मैं मानता हूँ मैं सच में उस जगह के उत्थान के लिए आई एम देयर टू रियली ट्राई टू एलिवेट दैट प्लेस। तो इसके लिए करेंगे एंड द पीपल विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड। आई एम श्योर विल मेक अ बिग ह्यूज टीम एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लोकल सोसाइटी। And also, sir, as expected, the results which were out for BJP, so वो expected 400 जो वो लोग बोल रहे थे, that was not there. So do you think the political shift is also being there in the inside the BJP? इस बार सोचेंगे कि आप जैसे लोगों को शायद लेकर के आए और कुछ और अच्छा कर सके in the next 5 नहीं, मैं ना years? पता हूँ, मैं इस लाइन में बिल्कुल नहीं सोचता। हाँ, आई एम नॉट थिंकिंग कि ये हुआ तो जिसको करना होता वो तभी कर सकते थे, और करना होगा तो अब भी कर सकते हैं। नहीं करना था तो पहले भी नहीं किया, और नहीं करना तो अब भी नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर संगठन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चरमरा रहा है, कहीं ना कहीं जो संगठन है भाजपा का, इट इज गोइंग द कांग्रेस वे ग्रेजुअली। ओके, इट इज गोइंग द कांग्रेस वे। जैसा कांग्रेस धीरे धीरे टूटता गया, उसको पता नहीं चला, भाजपा का भी अभी वही हो रहा है। इट हैज रीच्ड इट्स पीक एंड नाउ इट इज ऑन इट्स डाउनफॉल। तो ये अगर अभी भी नहीं सुधरे, जैसा कि आप देखिए जो ये अब की बार इतना जो मैंडेट आया, हाँ, ये भगवान ने ना आपको हिला के बस छोड़ दिया। आप थैंक यू बोलिए कि आपको गिराया नहीं, कि आपको मौका दे दिया गया कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, संभल जाइए। और क्या आपका, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि इट्स अ प्रॉमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन। आई ऑल्सो सी देम to be of much importance for the country, but unfortunately when people stop listening to the ground, जब आप ज़मीन की बात सुनना छोड़ देते हैं, आप हवा में हवाई बातें सुनते हैं, तो फिर आप हवा में हो जाते हैं, you know, फिर आपसे ज़मीन छूट जाता है। तो आई होप लेट्स सी आगे का आने वाले दिन में देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। आपके पहले भी सर एक टॉप नॉच स्टोरी हमारे पास जो पहले के गुप्तेश्वर पांडे जी थे, उन्होंने भी अपना जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव करियर था, जो वो काफ़ी बड़े DIG थे, एंड देन ही आल्सो लेफ्ट इट, बट देन बाद में शायद वो भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक रिफॉर्म नहीं ला पाए। बट सो यू एज बीइंग इन सच एंड आई कैन सी द होल लाइक द शिफ्ट एंड द होल स्टेमिना विच यू आर टेकिंग ऑफ। आपके क्या रहेंगे सर नेक्स्ट 5 years के देखिए, plans? उनका जैसा था, मेरा उनका कंपैरिजन वहाँ के ख़त्म हो जाता है, दैट ही वांटेड टू कम्पीट एंड गेट फॉर इलेक्शंस, वहीं ख़त्म हो जाता है हमारा कंपैरिजन, बिकॉज फ्रॉम देयर ही विथड्रू। I did not. I fought it. Yes, You know, I fought it, and I'm staying here. I'm not returning to the service the way he did. You know, I'm not changing my profession. कि मैं कुछ और बन जाऊँ, अब ये नहीं हुआ तो कुछ और नहीं। मैं जिस काम के लिए आया था उसी काम के लिए आया हूँ और उस काम के लिए रहूँगा। I'll be here to do for what I have left, one of the most prestigious services, one of my सपनों का मेरा जॉब था वो, जो मैं बचपन से बनना चाहता था। अपने सपनों को मैं सैक्रिफाइस करके आया हूँ। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे तमाशा ना करूँगा ना बनूँगा। यू नो, आई विल बी हियर। जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो काम मैं तटस्थता से करूँगा। तो अगले 5 साल की आप बात करिए, मैं हर दिन का, मैंने बताया ना मैं कल का नहीं सोचता हूँ, 5 साल बहुत बड़ी बात है। मैं हर दिन कैसे अपनी जिस मकसद से आया था, मैं जो एजेंडा बोलता रहा कि मुझे अच्छे कानून व्यवस्था, अच्छे स्वास्थ्य पे, अच्छे शिक्षा के लिए काम करना है, मुझे रोजगार पे काम करना है, क्रीड़ा पे काम करना है, धर्म के लिए काम करना है, तो ये सब जो चीज़ें मैं कहता, कृषि के लिए काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मैं करूँगा अभी भी। इट्स नॉट कि MP नहीं बना तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा स्केल छोटा हो जाएगा, पैसे नहीं है मेरे पास, रिसोर्सेस नहीं है। मैं जो रिसोर्स गार्नर कर पाऊँ, जितने समाज को साथ जोड़ पाऊँ, तो जितना मुझे हो पाएगा मैं करूँगा। लेकिन हर वो पॉइंट जिस पे मैंने चर्चा किया है, बात किया, वो मैं अभी भी करूँगा। और मैं समाज सेवा करने आया था, मैं पहले बताया ना, मैं पॉलिटिक्स के लिए तो आया ही नहीं था। हाँ, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता अच्छा था। अभी अगला फिर 29 में आएगा, या हो सकता है उसके पहले भी आए, जब भी मैं फिर लड़ूंगा।
मैं फिर उस जगह को पाने की कोशिश करूँगा और उसके लिए मैं तब तक अपना ज़मीन पे काम करूँगा, अपना ज़मीन बनाऊँगा, लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा कि आई एम हियर फॉर अ पर्पस। आप साथ जुड़िए, आप साथ मिलिए और मिल के हम अपने जिस क्षेत्र की बात करता हूँ उसको हम बनाते हैं, बिहार को बनाते हैं, देश को बनाते हैं। लेकिन लोग समझेंगे कि मैं यहाँ जेन्युइन, इतने दिन में कम टाइम था, वो समझ नहीं पाए, मे बी वो ट्रस्ट मैं गेन नहीं कर पाया उनका, इसलिए वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फेथ दे कुड नॉट डिसाइड कि किधर वोट देना है एंड समहाउ आई कुड नॉट मेक इट। तो थोड़ा सा रेस लंबा हो गया, थोड़ा विकास का जो मुद्दा है वो कहीं पिछड़ गया थोड़ा सा, बट आई एम श्योर कि वापस आएगा। डेफिनेटली सर। एंड सो बहुत लोग ऐसे हम जब बोल रहे थे कि आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, विल यू बी जॉइनिंग द पुलिस फोर्सेस अगेन और यू विल बी गोइंग टू द ये देखिए क्या ना, मैं एज आई टोल्ड यू, ये कमज़ोर मानसिकता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं पुलिस वापस ज्वाइन करूंगा सर्विस, वो अगर मेरी जगह होते तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज द बिकॉज कॉमन माइंडसेट। इट इज their mental weakness which they are trying to impose upon me. Me as a person, if I've decided something, I'll do it. यस मैं पागल हूँ इस मामले में, सन की हूँ कि अगर मैं टारगेट डिसाइड के लिए कि करूँगा तो ये मैं करूँगा। एंड आई हैव परफॉर्म्ड इट ड्यूरिंग माई पुलिस टेन्योर, यू हैव सीन इट। अगर मैं बोल दिया कि 3 दिन में मैं तुमको ख़त्म करूँगा, ये पूरा चीज़ ख़त्म करूँगा तो करूँगा। एंड फॉर दैट ओनली पीपल स्टार्टेड सरेंडरिंग बिकॉज दे न्यू कि ये बंदा बोला है तो करेगा, एंड मैं करता। तो ये मेरा माइंडसेट, माई एप्टीट्यूड डज नॉट चेंज ना। आई हैव जस्ट लेफ्ट माई यूनिफॉर्म। मैं वो मिजाज नहीं बदला है मेरा, बस काम बदला है। तो मेरा वही मिजाज रहेगा, काम तो मैं वही करूँगा। और मैंने कह दिया कि मैं अब समाज सेवा में, पॉलिटिक्स में आऊँ तो मैं समाज सेवा और पॉलिटिक्स में ही रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बक्सर ही मेरा बेस रहेगा और मैं जिस काम के लिए आया था वही काम करूँगा। सर डेस्टिनी में बिलीव करते हैं आप? Destiny, I believe कि you create your own destiny. Destiny is the net result of your efforts. तो When you connect the dots, do you believe सारे somebody डॉट्स is कनेक्ट हो there? जाते हैं। मैं बताऊँ, ये जो कहानी है ना, कनेक्टिंग डॉट्स, सारे डॉट कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि इफ़ यू हैव एक पाथ आप चल के आए हैं ना आगे, जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो पाथ कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज आप आगे आए हैं। अगर वो कनेक्ट नहीं होते तो आप वहीं रुक जाते लास्ट डॉट पे। तो जिस डॉट पे आप क्रॉस कर लिए हैं वो डॉट तो कनेक्टेड लगेंगे, वो सही है गलत है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये अभी आप बैठ के विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हर डॉट कनेक्ट होता है। एंड आई डोंट बिलीव इन कनेक्टिंग डॉट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। ये एक तरह का अपने मन को बहलाने का तरीका कि सब डॉट कनेक्ट हो गया, ऐसा ही होना था, ज़रूरी नहीं है। वो डॉट अलग से भी कनेक्ट हो सकते थे अगर आपका एफर्ट अलग होता तो। सो आई डोंट बिलीव इन दिस कि अगर डॉट कनेक्ट हो गए तो वही सही है, तो ऐसा नहीं है। And sir, one of your best moments which you still cherish till now? वो बड़ा पर्सनल सा मोमेंट था, रेनी डे एंड स्कूल के टाइम का था। सो आई चेरिश दैट 22nd July 2001, आई स्टिल चेरिश दैट वन डे ऑफ माई लाइफ। तो बस उतना ही है। इट्स अ वेरी पर्सनल, अ वेरी इनोसेंट मोमेंट, इट्स वेरी इनोसेंट मोमेंट जहाँ पे I realized the value of truthfulness, I realized the value of sincerity, I realized the value of divinity. तो एक ऐसा मोमेंट था वो। तो it was nothing, it's just a rainy day and a moment with myself. तो वो एक उसको मैं that was maybe a moment of self realization for me. Sir, in Crazy Tales, we believe that every story can change a story, sir. Yeah. And one cop story I would like to listen from you last time, sir. One cop story, क्योंकि आपको as an encounter specialist भी जाना जाता है. You are such a lively person, going biking everywhere. Adventures के videos मैंने आपके बहुत सारे देखे. Sir, एक ऐसा story बताइए जिसमें आपको लगा कि it was really the moment of your life. एक cop story सुनना चाहेंगे सर. कॉप स्टोरी तो गोलीबारी का ही स्टोरी होगा। जैसे बहुत सारे स्टोरीज हैं, एक उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, समवारी, बड़ा फेमस है, मेघालय में है, बागमारा में। वो आज बाद में मैं देखा कोई मुझे पोस्ट भेजा कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है वो जगह। मैं आई वाज लाइक, हाँ, that was a place where we went for we faced an encounter, very heavy gun battle we had. Okay. वो नदी के किनारे। तो रात को we were trying to cross it and we could not cross because of heavy rains. तो उसके बाहर तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे। तो आई रिमेंबर कि वो लोग कहते हैं ना आपको नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है, बताता हूँ। सो आई रिमेंबर दैट वाज लाइक अ बिग ह्यूज रॉक लाइक दिस, ओके, एंड वी कुड नॉट क्रॉस इट, सो वी वर वेटिंग फॉर द फर्स्ट लाइट। ये जो हो देन विल क्रॉस एंड विल गेट द कैंप। वहाँ पे कैंप, मिलिटेंट्स का कैंप था उसके उस पर। वी वांटेड टू कैच देम इन देयर कैंप्स। तो हम वहाँ पे उस पर सोए हुए थे
वो रॉक था, इट वाज लाइक ह्यूज, एंड आई रिमेंबर इट वाज लाइक आर्चिंग योर होल बॉडी व्हाइल यू स्लीप, यू नो, विथ योर गन ऑन योर चेस्ट, कॉक्ड AK-47 ऑन चेस्ट, विथ ऑल द यूनिफॉर्म एंड बस जस्ट कि थोड़ा यू नो वैसा सो के कि सुबह होने में टाइम है रॉक पे, एंड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, एंड यू नो व्हाट, जस्ट कैप को ऐसा मुंह के ऊपर कर लिया, एंड पूरे एकदम जोर के बारिश हो रही है, आप उसमें सो रहे हैं, यू नो, आप सोचिए कि किस लेवल पे वो इतनी प्यारी नींद किसको आ सकती है, तो वो था. एंड रिमेंबर व्हेन वी वोक अप, वी वोक विद गन शॉट्स. Okay, when they attacked from the other side, you know, they fired upon us on the other side. And then there was a whole gunshot, gun battles, kills, death, blood, all these things, you know, with after all these things. And then you realize कि, you know, life किस तरह से किस जंगल के कोने में आपको कहाँ से धीरे से शांत कर दे, आपको पता भी नहीं चलता. और हम इतना उछल कूद मचा रखे हैं धरती पे कि ये चीज़ वो चीज़. मैंने बहुत इनकाउंटर्स फेस किए, बहुत डेथ देखे हैं, बट दैट वाज वन प्लेस वेयर I could feel that bullets running over my head, you know. तो वहाँ से तो you realize then कि आप इतना close निकल के आते हैं जब. That was a point of realization for me. You know यार, ज़िंदगी अगर आप जिंदा है ना तो हर मोमेंट कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, हर मोमेंट जीना चाहिए. आपको चाहे जो करो खुश होके करो. तो ये चीज़ समझ के आया कि और कभी कुछ करो तो किसी का बुराई सोच के मत करो, आपके दुश्मनों को भी भला करो, क्योंकि बेचारे वो कहीं ना कहीं परेशान है. अगर आपका वो बुरा कर रहे हैं तो शायद उनको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, तो डू गुड टू देम ऑल्सो. तो ये एक माइंडसेट लेके मैं चला हूँ और अभी तक वही चल रहा हूँ. तो ड्यूरिंग दिस लास्ट इलेक्शन ऑल्सो पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी ये करना वो. मैं कहा यार नहीं करते हैं, जो गलत है ना वो अपने गड्ढे में खुद गिरेगा, आपको उसके लिए असिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो गलत है तो उसके संग गलत ही होगा. आप अच्छा करो, आप अपने लेवल पे अच्छा करते चलो. तो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चला हूँ. तो दैट वाज वन स्टोरी मैं बताऊंगा वेयर आई सर्वाइव वेरी 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 क्लोजली. हाँ, कि वो मैं मौत पक्का था टाइप से. तो उस दिन मैं बच गया तो मुझे लगा कि अब बच जाऊंगा. तो ऐसे और भी बहुत सारी कहानी है छोटे क्या माइंडसेट लेके चलते जब आप लोग इस तरीके के एनकाउंटर्स में जाते हैं? नहीं, आप माइंडसेट कुछ नहीं चाहते, आप चलते हैं कि भाई एक टास्क है, देयर इज अ बंच ऑफ गूंस, बंच ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जिसको आपको पकड़ना है. तो वही चाह के हम मारने पीटने के इसमें नहीं जाते, हम पकड़ने के लिए जाते हैं. अब क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, दे वेर, अब तो नहीं रहे वो लोग, दे वर गन लैडन, दे वर आर्म्ड, तो दे विल रेजिस्ट ना, दे विल नॉट, they think they are the lords of those places, and when they are challenged, so they will definitely retaliate and fire upon you. So then you have to show your worth, that you are working for dharma, you are there working for the country, the nation, you are the positive people there, you are the lawful people there. So ये सब you are better trained people. So these are the things which make us survive, I believe, you know. तो बाकी चलता तो बहुत कुछ है दिमाग में तब. और सर खाने में क्या पसंद है आपको? I'm a pure vegetarian person. प्योर शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, टी टोटलर हूँ. चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता था, बट आफ्टर ज्वाइनिंग IPS उसमें काफ़ी साल तक नहीं पिया था. तो उसके बाद बहुत रिसेंट ही बोल सकते हैं कि आई स्टार्टेड हैविंग चाय एंड कॉफ़ी. तो बाकी अदरवाइज सिंपल, और ऐसा नहीं कि पसंद, मुझे ना जो मिल जाए ठीक है. तो ऐसा कुछ बहुत फॉन्ड ऑफ कुछ नहीं हो कि हाँ, ये ज़रूर कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक ऐसी फैमिली से नहीं आता हूँ जहाँ पे कि बहुत कुछ देखा हो ज़िंदगी में हमने. तो बट अब तो देख लिया, चलिए अब तो सब कुछ खाना फैमिली का सर क्या टेक है आपके ये सारे डिसीजंस और इन सब चीज़ों? मैं बताया ना, ऐसा नहीं है, बहुत सपोर्टिव नहीं है कहीं से कोई. कोई बहुत सपोर्टिव नहीं है, सबके अपने अपने. लेकिन ये भी है कि कोई एकदम ओपनली मुझे हाथ पकड़ के खींच रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है. पर ठीक है, अब आपकी मर्जी कर रहे हो करो टाइप से. तो आई फील समटाइम्स मीन अबाउट मी से, यार मैं ना अपना थोड़ा मीन बिहेव कर रहा हूँ, मुझे लगता है. लेकिन फिर ये भी समझ में आता है, नेशनल कॉज यू आर थिंकिंग ऑफ. या दैट्स व्हाट ना. तो वो चीज़ है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर पर्सनल थिंग्स, यू नो, टू वर्क फॉर अ ग्रेटर कॉज. आपको ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ होंगे जो पर्सनल लेवल पे होते हैं, वो छूटेंगे, और लोग आपको उसके लिए ब्लेम भी करेंगे कि आप अपना पर्सनल तो देख नहीं पा रहे हो, बड़े चले देश संभाल लें, यू नो. ये सब तरह की आपको सुनने को मिलेंगे. तो आई एम रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल आई हैव डिसाइडेड द पाथ वे अहेड. सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट एंड नो नथिंग लुकिंग बैकवर्ड्स. अब आगे ही चलना है. And sir, one last message to all the people who would be looking forward to you. Looking forward to me, that's so nice of you. In fact, if you are looking forward to me, then you look forward towards a person who will work for positivity, a person who will always stand for those who are weak, a person who will always stand for dharma, a person who will always stand for truth, and will never ever compromise with the basic ethos which I have lived through all my life.
तो Thank you so ये- much, sir. It was very nice and very Thanks, ma'am. wonderful having you here. Thank you so much. I would like to thank from all the Crazy Tales team for Thank being you so part much, of ma'am. it. To you Thank and to you. all your Thank team. you. Thank you so much. much. Thanks, Thank ma'am. you. Thank you. Thank you.